रही है। हेलो, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का ज्योतिष के इस क्लास में। मैं धर्मेंद्र 2000 के शुरुआत से ही ज्योतिष के शिक्षण का कार्य कर रहा हूं और ये पहली बार है कि जब हमने फ्री क्लासेस की व्यवस्था की है। जरा क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले परिचय हो जाए। अपना अपना परिचय दीजिए, या तो आप अपना माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं या फिर चैटिंग में भी दे सकते हैं। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम गीतांजलि है, मैं दिल्ली से हूँ। जी जी जी, ज्योतिष में कहाँ तक आपका अनुभव है? ज्योतिष को किस प्रकार से आपने कहाँ तक सीखा है? सर अभी मतलब ये लर्न नहीं करा है कहीं से भी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आपके साथ। अच्छा, तो ज्योतिष में इंटरेस्ट है लेकिन पहले से कहीं नहीं किया, इसका मतलब बुक्स स्टडी की है आपने? हाँ, पाराशरी वगैरह ऑनलाइन रीड करा है और आओ ज्योतिष सीखे भी, पीडीएफ पढ़ा है ऑनलाइन ही, मतलब ये गूगल के थ्रू। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने स्वाध्याय से बहुत कुछ किया है, तो हम इसको सिस्टमेटिक वे में लेके चलना चाहते हैं। एक और हमारे साथ में है जुड़े हुए, तो मैं माउस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? हेलो Hello. जी, ये Hello, मेरा can I कंट्रोल। speak in English, please? यस यस, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। Hello, yes, my name is Charlene. I am from South Africa, and I'm pleased to be here with you all. Yes. Would you like to come online video? Could you please on your video for 1 minute? Unfortunately, I don't have a webcam, so I cannot. Yes, Okay. I'm on a normal PC. Okay. Don't worry. So, what's your experience in astrology? How much you have learned this system? I have done one basic course, and I'm busy with the second one. I'm halfway through. Yes. Okay. We are starting traditional astrology or classical astrology, and we will start from beginning. We will check every chapter and then we'll come to the next one. So we will be slow, but we will learn everything. If you are familiar with something, another member may not be familiar with that chapter or that topic. So keep with us, we will discuss everything. Okay, so Git Sharma, you know how zodiac is divided into signs and stars. Do you have idea?
See, this is zodiac. There are 9 planets in astrology, and it's not necessary that scientifically they are planets. But since in astrology they are termed as planet, we will consider them planet, and we will exclude those planets which are not considered in traditional system of astrology, classical system, or Vedic system of astrology. So Sun is a planet for us as far as astrology is concerned. We know that Sun is star, but and Moon is satellite. We will considering it all 9 planets: Sun, Moon, Mars, Mercury, Venus, Jupiter, Saturn, Mercury. We will come Uranus, Neptune, and Pluto to somewhere at the end of the course, but we are not considering this at this time. You may see this is zodiac. Zodiac is a point and it has expanded. A Big Bang theory has been proposed that a point burst energy is released. So a point in mathematics is considered to be comprised of 360 degree. The whole universe we are considering a point that is divided into different parts on the basis of some parameters. If we are dividing it in 12 parts, each part will be considered a sign. A sign will have 30-degree value. And if we are dividing this zodiac into 27 parts, because we have 27 stars in astrology, each part will be called the stars, constellation, nakshatra, and the value or the span will be 13 degree 20 minutes. This minute is angular distance, and hence do not be confused with the time which we measure. जो घड़ियों का इस्तेमाल हम करते हैं वो ये मिनट और सेकंड्स नहीं है, ये एंगुलर डिस्टेंस मेजर करने वाला मिनट से और सेकंड से, जिसको हम आर्क मिनट और आर्क सेकंड्स कहेंगे तो बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से है। लोग आते हैं क्लासिकल सिस्टम पे, वैदिक सिस्टम पे। तो अगर आप इस पूरे ज़ोडिएक को डिवाइड कर देते हैं 12 पार्ट्स में, इस प्रकार से 12 पार्ट्स बनाने हैं हमें। सपोज कीजिए 12 पार्ट्स हमारे बन गए, तो ये एक पार्ट जो है वो 1 साइन is equal to 360 divided by 12. Since we are taking 12 parts, one part is of 30 degree and hence one sine is of 30 degree. Sine is also known as राशि, इसको हम लोग राशि भी कहेंगे। अब राशि के आगे चलते हैं, अगर इसको और डिवीजन करें तो वो नक्षत्र मिलेगा, जिसको स्टार्स, constellation is also termed.
there are 27 stars, and hence if divided 360 degrees into 7 parts, we may get 13 degrees, and this one is 20 seconds. And if it convert it into minutes, that will be 13 multiplied by 60 plus 20, and that is 800 minutes, arc minutes. And this is the value of 1 star. How ascendant is formed, we will discuss this some other time, but we are not going into the lengthy mathematical parts. We will take that after some time. See, signs are sequentially arranged, stars are sequentially arranged. What are the names of signs? Could you please, any of you? Hello. Are you listening? Hello. Hello. आवाज नहीं आ रही है. Do you mean like starting from Aries, Yes, Taurus, yes. Gemini? Yes. Yes. Aries. So yes, Aries, Gemini, It is Maize. Mesha, yeah. Capricorn. Taurus. This is Wish or Visha. In Hindi Visha. also we are discussing, because I think I am from India. Right. In there may be person who is interested in Hindi class, so I also going to speak in Hindi. Gemini. Third one is Gemini, and Gemini is known as Mithun. Mithun. Fourth, Now the next one is Kark. Cancer or Cancer. Karka? Yeah. Cancer. Kark. and Now next one is fifth Leo. is Leo. 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 It is. Singh. Sixth one is Kanya. Leo. Virgo. Virgo. Yeah. Virgo. Now the next And? one is Sila. Libra. Libra. Okay. Tula. And Yes. Scorpio. Scorpio, and that is Vrishchik. Vrishika. 9. Nine is Dhanu. That Sagittarius. is Sagittarius. Yes. And 10th one is Capricorn. Capricorn. Capricorn, and it is. Makar. Makara. And 11 is Aquarius. Aquarius. Aquarius, and this is. Kumbh. And last one is Pisces. Pisces. Which is Meena, yeah. Main. You may say Yes. sign has synchronization with symbol. मेष, एरीज. अब देखते हैं भेड़ के साथ उसकी तुलना की गई, भेड़ जैसा है, तो जो नेम है उसके, उस नेम के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी है, उसका स्वभाव उसी के जैसा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है. टॉरस, वृष, सांड, सांड के जैसा स्वभाव है. मिथुन, मिथुन का मतलब क्या होता है? पेयर होता है, तो ये हमेशा पेयर में रहने वाला है, ड्यूअलिटी है. कर्क, कर्क किसको कहते हैं? क्रैब, केकड़ा.
सिंह को आप जानते ही हैं, एक क्या सिंह, इसको कौन नहीं जानता, जंगल का मालिक तो यही है, फॉरेस्ट किंग। वर्गो कन्या, कन्या मीन्स सेवा करने वाली, जैसे नर्स होती है उस प्रकार से लिब्रा है। तुला, स्कॉर्पियो, बिच्छू जो डंक मार देता है, स्वभाव से ही दुष्टता है उसके अंदर में, शैतानपन है। सेजिटेरियस, धनुष लिए हुए जो घोड़े पे एक इंसान है, दो तरह का उसका स्वभाव है, वो आदमी भी है और वो जानवर भी है। कैप्रिकॉर्न मटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो होते हैं, नदियों के राजा। एक्वेरियस, ये मटका हो गया हमारा। पॉट, अर्थन पॉट। पाइसेस, ये भी जीवल होता है, और ये पाइसेस मीन्स मीन ही होता है, साइंटिफिक नेम फिश का पाइसेस ही होता है। ठीक, तो ये हमने सीरियली नेम उसके जाने क्या क्या राशियां। अब इसके आगे आप बढ़िएगा तो और भी कई चीजें मिलेंगी। नक्षत्र आएंगे, नक्षत्रों की चर्चा हम किसी और दिन कर लेंगे। हम अब कुंडली पे आते हैं ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए। साथ साथ चीजें लेकर के चलेंगे। इसमें बहुत सारा कैलकुलेटिव पार्ट है। जो बेसिक पार्ट होता है दैट इज कैलकुलेटिव पार्ट, गणित कहते हैं जिसको, और उस गणित के आधार पर आप फलित करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं बन पाया, फिर भी चलिए ये हम लिखते हैं। ये कुंडली, ये रिप्रेजेंटेशन प्लेनेट का, दिस इज द मैप ऑफ स्काई एंड इट इज Yes. गीत शर्मा जी, Yes. आपको हिंदी में ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, मैं हिंदी भी अटेंड करना चाहूँगी। अच्छा, एक मैडम भी है इसमें साउथ अफ्रीका से, वो जुड़ गई है। Yes तो sir, yes sir, I can understand. तो थोड़ा सा मतलब हिंदी इंग्लिश चलेगा, आप समझ जाइएगा। आप दिल्ली में रह रही हैं तो निश्चित रूप से इंग्लिश इतनी तो समझ ही जाइएगा, है ना? थोड़ी बिल्कुल। मिला जुला करके चला देते हैं, क्योंकि सबको साथ लेके चलना सबसे बड़ी बात होती है ना? तो उसमें क्या होता है कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जीवन एडजस्टमेंट का नाम है, ठीक है ना? कहीं भी चलिएगा, घर में भी रहिएगा, आपको एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये जो जी सर। मैप है, स्काई का रिप्रेजेंटेशन होता है, मानचित्र होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्काई, एंड देयर आर several types of representation of this chart. So this one is North Indian chart. There may be South Indian charts, there may be Orient chart, there may be Western chart. नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, आप ज्वाइन हो रहे हैं, कोई बात नहीं, तब तक हम चलते हैं। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट में होता क्या है, वी मूव एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, साउथ इंडियन चार्ट्स में जब चलेंगे, साउथ इंडियन चार्ट्स वी मूव क्लॉकवाइज। ओके, नॉर्थ इंडियन एंड दिस वन इज South Indian chart. So we write here a number. Number may be anything, but I am starting it with number 1. That is, number represents Aries. So ये Aries हो गया, and then after 2, 3, 4, 5, because we are going anti-clockwise. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Like this,
If it was South Indian chart, it could have something like this. See, there is a square. This, like this, like this, and we have to move. Suppose this is 1, so 2, 3, 4, and this is we are moving in clockwise direction. Here we write 1, 2, 3, etc. Aries is fixed for South Indian chart style. There might be ascendant Cancer, there might be Libra. So they write ascendant, ASC, that this sign is ascendant. While in North Indian style, this space is termed as ascendant. This is fixed every time. This could not be called ascendant, this could not be called, this could not be called. Only this could be called ascendant. While in South Indian, this may be ascendant, 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 ascendant. Any one could be ascendant. Okay? Okay. So this one is ascendant, and number written here represents the sign. राशि को बताता है। ये एक नंबर का मतलब हुआ मेष राशि उदित हो रही थी जिस वक्त ये घटना घटित हुई। घटना का मतलब प्राय ज्योतिष में हमारे लिए घटना जो होगा वह जन्म होगा, जन्म होना किसी जातक। A person takes birth is an event, and the event at the eastern horizon, this number sign was rising. तो ये मेष राशि का उदय हो रहा था उस वक्त जिस वक्त का ये समय चार्ट बनाया गया है। अब बाकी में हमने लिख दिए नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा। तो वो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह वगैरह वगैरह। अब इसमें हम ग्रहों का कैलकुलेशन करेंगे। We will calculate the longitudinal position of planet, and this will be find out with the help of ephemeris and table of houses. Table of ascendant. Table of ascendant एक बुक है, वो इसेंशियल होता है, उसके थ्रू हम लोग ये बना सकते हैं। किसी भी स्थान का लग्न निकाल सकते हैं। लग्न निकालना लग्न इसेंशियल है। असेंडेंट निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम इसका करेंगे। असेंडेंट आपका न्यू हो गया। अगर आप न्यू तैयार कर लेते, बेस तैयार कर लेते, तो उस पर बिल्डिंग 2, 3, 4 कितने भी तल्ले की बना सकते हैं। यू कैन मेक योर बिल्डिंग एज मेनी स्टोरी यू वांट। फिर ग्रह भी हम उसमें डाल देंगे उसके अनुसार में, वो हम एक दिन करेंगे उसको कि किस तरीके से करना है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको चर्चा करेंगे कि कौन से भाव को क्या नाम दिया गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि साफ सुथरा बन जाए। You may see four squares, 4
larger area. This one is larger. This one is also larger. This and this. There are 4 houses. These are called houses. ये हाउसेस हो गए. ये नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं 1 2 3. ये हाउस है. जितना ये एरिया है ये हम लोग बोलेंगे चौथा घर है. ठीक है. 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12. ठीक है. अब इस हिस्से को क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं. अगर इंग्लिश की बात करें तो हम लोग उसको असेंडेंट लिखेंगे. इसको केंद्र स्थान भी कहते हैं. केंद्र, इसको भी केंद्र कहते हैं. चौथे को सप्तम भाव को भी केंद्र कहते हैं. दिस वन इज आल्सो केंद्र. सो देयर आर 4 केंद्र. केंद्र स्थान कौन कौन से मिले? 1 4 7 and 10. These are केंद्र स्थान. And another one is त्रिकोण, ट्राइन. ट्राइन, तो ट्राइन हमारे पास में 3 है. ये वाला जो हिस्सा है ये केंद्र है, साथ ही साथ ये त्रिकोण भी है. तो आप लिख सकते हैं 1. तो हाउस 1 है, वो त्रिकोण भी है. एंड दिस वन इज आल्सो त्रिकोण. एंड दिस वन इज आल्सो त्रिकोण. 9th. तो एक केंद्र हो गया, त्रिकोण हो गया. त्रिकोण को हम लोग धर्म के नाम से भी जानते हैं. त्रिकोण इज ट्रीटेड एज धर्म. आप जानते हैं 4 चीजें होती हैं: धर्म, अर्थ. अर्थ तो मैं लिख रहा हूँ, ये मिट्टी वाला अर्थ नहीं है, इसको आप ऐसा वाला अर्थ समझिए. इसको मनी मैटर कह सकते हैं आप. धर्म, अर्थ, काम, एंड अनदर इज मोक्ष. 4 चीजें होती है. तो जो धर्म है वो 1 5 और 9th है. अगर 9th कहीं लिख रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि धर्म स्थान है. 5 लिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि धर्म स्थान है. 3 धर्म स्थान है, किसी के लिए भी. अर्थ उसके ठीक बाद वाले के लिए प्रयोग होता है. जैसे 1 के बाद जो भी आया, धर्म के बाद अर्थ होता है. तो 5वें के बाद भी जो होगा आफ्टर 5 6. सो 6 इज आल्सो अर्थ रिलेटेड टू मनी मैटर. एंड 9 के बाद जो आएगा वो अर्थ हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट दिस इज काम, डिजायर. यू कैन से डिजायर. तो डिजायर के लिए क्या आ जाएगा? वो उसका अगला वाला हिस्सा होगा. आफ्टर दैट, सो 2 + 1, दिस इज 3. 6 + 1 7. And 10 + 1, that is 11. So third means this area, and this area is termed as काम, that is desire. एंड मोक्ष. जब एक साइकिल पूरा हो जाता है तो मोक्ष कहलाता है. मोक्ष का मतलब है चौथा भाव. ये है चौथा अपना जो केंद्र स्थान है. दिस वन इज नोन एज मोक्ष स्थान. 8 उसमें ऐड करते चलेंगे. 3 के बाद आएगा तो 1 4. 7 के बाद आया तो 8. एंड आफ्टर 11 दैट इज 12. सो एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू बी सीज्ड is known as मोक्ष. ये मोक्ष की परिभाषा जो फिलोसफी में है उससे थोड़ा डिफरेंट है. ये मोक्ष का मतलब समाप्ति, एंड. तो आप जानते हैं जीवन में 4 उद्देश्य हमारे पास में. धर्म माने धर्म का मतलब है कि दैट विच इज आवर ड्यूटी, जो हमें करना है वो धर्म हो गया. और धर्म यानी जो हम करेंगे, जो कुछ ड्यूटी करेंगे तो वो उससे हमें we will get money, we will get something from which we can get something. तो वो अर्थ हो गया.
और अर्थ से हमारी डिजायर फुलफिल होती है। तो काम, हमारी इच्छाएं हैं, वो डिजायर पूरी होंगी। और जब हमने तीनों ही कर लिया, हमने अपनी ड्यूटी निभा ली, उससे हमने अर्निंग कर ली और अर्निंग से हमने सुख भोग लिया, देन नथिंग इज लेफ्ट हियर। तब लिबरेट हो जाने का वक्त है, समाप्त हो जाने का वक्त है। तो वो मोक्ष स्थानों के समाप्ति का सूचक है। तो इसीलिए अष्टम भाव है इसमें, देखिए इसमें मृत्यु का भाव कहा गया है और द्वादश भाव है। द्वादश भाव 12वें, लॉस ऑफ एनीथिंग। तो जैसे ही लॉस होता है तो क्या होता है, डिटैचमेंट भी हो जाता है आपका। किसी चीज का लॉस हो गया, वो डिटैचमेंट है। ठीक है, तो आपने आज ये जानने हैं कि किस भाव को क्या नाम दी गई है, क्या संज्ञा दी गई है। अब आगे आते हैं। अगर आप कहें तो मैं इसको मिटा दूं या रहने देता हूं, मिटाता नहीं। केंद्र की बात होगी, त्रिकोण की बात होगी। पणफर एक शब्द है। नमस्कार, स्वागत है आपका। पणफर, पणफर किसको कहते हैं? 2, 5, 8, 2, 5, 8 और 11वें स्थान को पणफर की संज्ञा दी गई है। दीज आर टर्म एज पणफर। पणफर हाउस, house is also known as cusp. After केंद्र स्थान पणफर comes। तो केंद्र स्थान है 1 हमारे पास में, 1, तो 1 के बाद वाला आएगा वो पणफर हो जाएगा। इसी प्रकार केंद्र स्थान है 4, 4 के बाद वाला आएगा वो पणफर हो गया। इसी प्रकार से सप्तम स्थान भी केंद्र स्थान है, तो उसके बाद वाला अष्टम हो गया। दशम स्थान केंद्र स्थान है, उसके बाद वाला पणफर की संज्ञा है। तो आप ये देख सकते हैं कि पणफर में एक धर्म का ले लिया हमने 5, अर्थ का ले लिया 2, काम का ले लिया 1 हमने 11 और मोक्ष का ले लिया 1। तो ये ऐसा है कि पणफर में सारे धर्म और काम मोक्ष में से एक एक लिए गए। ठीक है, पणफर के बाद में आपो की एक भाव का नाम होगा। आपो क्लीब किसको कहते हैं? तीसरा, छठा, 9 और 12वें स्थान को आपो क्लीब की संज्ञा दी गई है। इसमें भी आप देखिएगा सब में से लिया गया है। एक इसमें से डिजायर में से लिया गया, एक अर्थ से लिया गया और एक इधर धर्म से लिया गया, एक इधर मोक्ष से लिया गया, ऐसा करके। और ये जो है सो ये पहले आते केंद्र स्थान के पहले, 3 का मतलब है चौथे के पहले, बिफोर ए केंद्र स्थान। 6 पढ़ना है पहला, 7वें से पहला, दशम के पहले 9 और 12वां केंद्र स्थान के पहले। दाल वाले खा लोगे, सादा बना रहे हैं, दाल वाले खा लो। ठीक, अब एक बात और आती है, चतुरस। चतुरस किसको कहते हैं? चतुर नाम से ही हो गया, चौथे और 8वें भाव को चतुरस की संज्ञा दी गई है। ये जो मोक्ष स्थान है वो, और ये वाला भी मोक्ष स्थान है। इसमें 12वें को हमने इंक्लूड नहीं किया चतुरस। उसके बाद आती है उच्चय स्थान और तब आता है अनुच्चय। उच्चय स्थान किसको कहते हैं? ये है 3, 6, 10 और 11 बीज हाउसेस। थर्ड, ये जो डिजायर है आपकी, 6 ये जो अर्थ है आपकी, और 10 ये जो आपका अर्थ ही है, और 11 वो उसको हमने लिखा है उच्चय स्थान में। उच्चय स्थान जीवन की प्रगति के भाव होते हैं। मीन्स डेवलपमेंट इन योर लाइफ, मेटीरियलिस्टिक लाइफ इज उच्चय, बढ़ना, डेवलपमेंट।
दिस वन। उपचय का उल्टा अनुपचय होता है। तो अनुपचय स्थान में कौन कौन से आते हैं? बाकी सारे घर जो 4 को छोड़ देते हैं, remove these 4 houses, all houses remaining is known as अनुपचय। तो अनुपचय में आ जाते हैं आपके 1 2 3 छोड़ दीजिए, 4 5 6 छोड़ दीजिए, तो 7 8 9 10 को एक्सक्लूड कीजिए और 11 को भी एक्सक्लूड कीजिए, तो 12। तो 4 घर इधर मिल गए, 8 घर इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 और टोटल 4, फुल ऐड कीजिएगा तो टोटल 12 हो गए आपके पास में उपचय। ठीक है ना? हेलो, आप लोगों अनम्यूट होकर के हाँ ना बोल दीजिए कभी, तो पता लगे मुझे कि आप सुन पा रहे हैं। हेलो हेलो, सही जा रहा है? हाँ जी आवाज सर, मिल आपने रही? तो बता, हाँ जी सर आपकी आवाज मिल रही है, आप अच्छे समझा रहे हैं। मेरा यहाँ पे कंफ्यूजन है, आपने उपचय और अनुपचय स्थान बताए कि ये 3 6 10 और 11, इससे आप हम लोग उपचय मतलब तरक्की आई थिंक देख सकते हैं, बट ये अनुपचय जो है इससे मतलब देखिए, अभी जब हम प्रेडिक्टिव पार्ट में आएंगे तब बात करेंगे इसको उपचय और अनुपचय को ढंग से चतुरस्र। जब आएंगे श्लोक आते हैं, चाहे किसी फलदीपिका को ले लेते हैं, यमन जातक ले लेते हैं, कोई भी पुस्तक लेते हैं उसमें हम करेंगे तो लिखा हुआ होगा उपचय स्थानों में बैठा ग्रह ऐसा करता है, तब आप उपचय डिसाइड कर पाइएगा कि 3 6 10 11 की बात हो रही। चतुरस्र लिखा हुआ होगा तो चतुरस्र मतलब 4th and 8th हाउस। ठीक है, इसका प्रयोग वहां होगा, क्योंकि बार बार कभी कभी हम प्रयोग करेंगे त्रिशटाय में बैठा हुआ है। तो जब हम त्रिशटाय, ये टर्मिनोलॉजी है, तो टर्मिनोलॉजी को एक बार हम अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे से फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। बस उपचय को 3 6 10 11 को मैंने अच्छा जरूर बता दिया है आपको, लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट में ये अच्छा नहीं माना गया है। अच्छा, उसमें भी कुछ है और इसमें भी कुछ है। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको खूब बढ़िया से समझ पाएंगे। उपचय अनुपचय हो गया हमारा। त्रिक स्थान की बात करते हैं। त्रिक जो होते हैं वो खराब होते हैं, लेकिन एस चटर्जी साहब ने एक पुस्तक लिखी है त्रिक स्थानों की गाथा। ये त्रिक स्थान सबसे खराब स्थान होके भी किसी किसी को क्या क्या दे दिए, पूरी पुस्तक है उसके ऊपर, बुक रिटन बाय एस चटर्जी। या दुह स्थान भी कहते हैं इसको। And this one is 6 8 12, 6 8 12। ये वाला 6 है, ये बीमारी का घर कहते हैं, 8 मृत्यु का और बड़ी बीमारियों का या एक्सीडेंट्स का, और ये 12 व्यय का, लॉस का। ठीक है, ये त्रिक स्थान हो गए, दुह स्थान कहलाएगा। एक पतित स्थान भी होता है। पतित, ये किसको कहते हैं? इसमें 8 हटा दीजिए तो वही त्रिक स्थान आ जाएगा। 6 और 12 ये पतित स्थान होते हैं। पतित का मतलब आप समझते ही हैं, गया गुजरा, खराब, दैट इज नॉट कंसीडर्ड गुड, वर्स्ट, ऐसा आप बोल सकते हैं, दिस इज द वर्स्ट। मारक, इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता लगे, वर्स्ट। हाँ, मारक। मारक किसको कहते हैं? ये मारक स्थान कौन से होते हैं? ये हमारे पास में ये जो दूसरा है ये मारक है, ये जो है वो मारक है। 2 घर मारक होते हैं, 2 और 7। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मारक? मारक मीन्स कॉजिंग डेथ, मार देना, मृत्यु करना, वो डेथ, वही हुआ मारक। और मारक के साथ साथ एक बात और आती है, पहले मारक और आयु ये दोनों कनेक्टेड।
आयु स्थान किसको कहते हैं? ये तो जो मारक बना है हाउस, उसके व्यय कर देने वाले, उसके लॉस कर देने वाले घरों को ही हम आयु कह सकते हैं, या आयु का लॉस कर दिया जिसने, वो मारक बन गया। तो आयु स्थान 1, आयु का स्थान आपका तीसरा भी माना गया है, और आयु का स्थान अष्टम है। तो अष्टम को हम लोग मृत्यु कहते हैं, मगर वास्तव में वो मृत्यु नहीं है, वो आयु है। लेकिन मृत्यु और आयु को हम लोग एक ही टर्मिनोलॉजी में थोड़ा कंफ्यूजन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अष्टम को मृत्यु मान लिया गया है, एक्चुअली आयु समाप्त होने को ही मृत्यु कहते हैं, इसलिए 1, 3 and 8 is termed as आयु स्थान। आयु मीन्स एज, या इसको आप ऐसा बोल सकते हैं लाइफ स्पैन, कितना लंबा जीवन होगा आपका। ये इन भावों पर डिपेंड करता है। किन भावों पर? जो हाउस ऑफ एज है, जो हाउस ऑफ डेथ है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। अकेले आयु स्थान डिसाइड नहीं करता, मारक स्थान भी आवश्यक है उसकी गणना के लिए। उसके बाद में एक और चीजें आती है जो जानना चाहिए, इसेंशियल है, बाधक। बाधक घर किसको कहते हैं? बाधक का मतलब है कॉजिंग ऑब्स्टेकल, जो रुकावट है। आप ऐसा समझिए कि ब्रेकर, जैसे रोड ब्रेकर है, रोड ब्रेकर एज कॉजिंग योर स्पीड टू बी सीज्ड, वही इसका है बाधक का मतलब। बाधक हम 3 घरों को कह सकते हैं, और वो 3 घर कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है 11th हाउस, उसके बाद 9th हाउस, और उसके बाद में 7th। ये 3 घरों को बाधक घर कहते हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द हॉरोस्कोप, इट डिपेंड्स अपॉन द ascendant which is rising in the eastern horizon, that which house should be considered as Badhaka house. Suppose this one is Aries ascendant, one, so this 11th house will be considered as Badhaka। अगर ये सपोज कीजिए कि ये एक ना हो रही है जी, अगर ये जी सर, आप सुन पा? मैं सुन पा रहा सर, हूँ। नॉइस क्रिएट हो रही है बहुत ज्यादा, कुछ भी आपका साउंड नहीं आ रहा। जी, अब आवाज ठीक आ रही है आपको? हाँ, अब क्लियर आ रहा है, बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा था। हाँ, तो पंखे की स्पीड बढ़ने की वजह से। ये अगर एरीज असेंडेंट है, एरीज कहने का मतलब है कि अगर चर राशियां हैं, चर, ठीक है, चर का मतलब क्या होता है? मूवेबल। तो चर राशियां हमारे पास कितनी है? चाहे 1 नंबर हो, चाहे 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, ये चर राशियां हैं। तो इसमें हमारे लिए ये वाला घर बाधक घर बनेगा। अगर ये चर न हो करके स्थिर, स्थिर कहने का मतलब है फिक्स्ड, और फिक्स्ड हाउस हमारे पास में है 2, 5, 8, 11। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर 2 रहा होता नंबर, तब ये बाधक नहीं बनता, तब बाधक बनता 9th हाउस, ये बाधक बन जाता। और अगर सपोज कीजिए, सर आप एक बार फिर से समझा सकते हैं? एकदम समझाएंगे, पहले मैं अपनी बात सर और ये द्विस्वभाव राशियां होती जी 3, 6, 9, 12, तब उस परिस्थिति में ये सप्तम भाव बनता 12। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। एक्चुअली अभी चलिए स्थिर द्विस्वभाव का कंसेप्ट नहीं हुआ, इसलिए दिक्कत हुई। देखिए, राशियों के अनेक प्रकार हैं। अगले दिन हम जब चर्चा करेंगे तो राशियों के ही अनेक प्रकारों पर चर्चा करेंगे, जैसे पुरुष राशि, स्त्री राशि, बंध्य राशि, कीट राशि, चतुष्पद राशि, ऐसी करके तो हम राशियों का विभेदन करेंगे, अग्नि तत्व वगैरह वगैरह राशियां।
एक होती है चर, ठीक है, दूसरी होती है स्थिर, और तीसरी जो होती है वो होती है स्वभाव। इसको इंग्लिश में मैं लिख दूं, चर का मीन्स है मूवेबल, स्थिर का मतलब है फिक्स साइन। अब इनका क्या मीनिंग होता है, जब प्रेडिक्टिव पार्ट में चलेंगे हम लोग तो उसमें जरूर चर्चा करेंगे। चर, स्थिर, जो अभी टर्मिनोलॉजी से हम लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए इनका नाम जानिए। ड्यूअल साइन। तो पहली जो राशि है मेष राशि, वो चर राशि है। दूसरी राशि स्थिर है, यानी वृष, टॉरस, और ड्यूअल साइन में तीसरा आ जाता है। फिर रिपीट हुई है। अब चार, कर्क जो है कैंसर इज मूवेबल, लियो वो हो गया आपका स्थिर, और वर्गो हो गया ये द्वितीय भाव में चला गया। फिर इसको आगे बढ़ते हैं, लिब्रा ये आपका मूवेबल है, स्कॉर्पियो दिस वन इज फिक्स्ड, एंड सेजिटेरियस दिस इज ड्यूअल। बच गए तीन और साइन हमारे पास में। कैप्रिकॉर्न मकर राशि चर राशि है, मूवेबल। कुंभ स्थिर राशि है, एक्वेरियस फिक्स साइन, एंड 12 पाइसेस साइन इज ड्यूअल साइन। ठीक है, तो अगर कभी असेंडेंट में ये साइन नंबर हो, मेष हो, ये कर्क हो, या तुला हो, मकर हो, तो इन सब के लिए हमारे पास में जो आएगा 11th हाउस इज बात का। ठीक है, और अगर ये साइन हो तो 9th हाउस इज, this one is in ascendant, then 7th house is, ठीक है। हेलो, आप लोग अनम्यूट जी हो सर। सकते हैं। देखिए, आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि 40 मिनट का हमने निर्धारित किया था समय, लगभग 50 मिनट हो गए हैं। फिर हम नेक्स्ट वीक इस क्लास को करेंगे, इसके आगे हम बढ़ेंगे। समय से आप लोग अगर जाएंगे, मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा और उसमें पासवर्ड लिंक भी होगा। आपको क्लास कैसा लगा आप ये उस पर लिख दीजिएगा, तो मेरा लगेगा कि हाँ क्लास सार्थक हो रहा है, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद आज के लिए, आपका दिन शुभ, नमस्कार। थैंक यू सर। Thank you. हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन, बाय बाय। Bye bye. बाय। अब आप लोग मूव हो सकते हैं।